سید اشرف. میں 2 ٹاپک میں بات کرنا چاہتا ہوں خالی. بس یہ 2 ٹاپک تم کلیئر کر دو تو تم جیت جاؤ گے. تم جو بولو گے وہی مان جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک ٹاپک ہے جو تم لوگوں کا قوم میں سب سے زیادہ بیماری ہے. تم لوگ چلو جو ہے ثابت کرو کہ اس والی قوم میں ایکس مسلم قوم میں سب سے زیادہ بیماری ہے. چلو دکھاؤ کون سی والی تم کیا بول رہے ہو؟ نے اس بات کو ثابت کرو نا. کہاں پہ تم نے کون سی پی یو ریسرچ دیکھی ہے جس میں تمہیں ملا؟ ہاں تو جیسے کرسچن ہو گیا اور تم لوگ یار تم کون لوگ سی پی یو ریسرچ تم نے دیکھی ہے وہ دکھاؤ نا یار. اچھا دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے. دکھاؤ. چلو جی ساحل صاحب پی یو ریسرچ آنے لگی ہے. دیکھیں کون سی ریسرچ آتی ہے. نہیں اس نے ہاں لیکن یار ڈیفائن کیسے کیا تمہاری قوم سے کیا مراد ہے؟ ایکس ساحل مسلم. کوئی بات نہیں چلو دیکھنے تو دے یار. میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں یہ کون سا ڈنگر ہے جس نے ریسرچ کیا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر بیماری کم آتی ہے اور نان مسلموں پہ بیماری زیادہ آتی ہے. یار دیکھنا پڑے گا یار. تو دیکھنا آپ لوگ چاہتا ہوں. مرد کے اولاد ہو تو دکھاؤ گے ضرور. ٹھیک ہے. میں شیئر ابے کر رہا تو نے ہوں. دکھانا ہے ڈنگر, تو نے دکھانا ہے. شو ہاں کر. میں شیئر کر رہا ہوں. میں تو چیٹ میں کر شیئر نا کر رہا ہوں. یار. پی یو ریسرچ شو کر. ساحل صاحب پتہ ہے کیا آنا ہے؟ ایک مسلٹے کا لکھا ہوا چوتیا آرٹیکل. دکھا یار دکھا یار دکھا. دیکھو چیٹ میں ڈال دیا. اچھا چیٹ میں ڈالا ہے وہ. لو جی کرونا وائرس کا آیا جی. کرونا وائرس کا لنک آیا. لو ساحل صاحب کرونا وائرس لنک. لو جی لو میرا ہاں پیورا پپو بھائی کرونا وائرس لنک آیا جی. ہاں اوپن کرو. کرونا وائرس کیسی 6,95,000 نہیں 6 لاکھ نہیں ہے. ہاں 21 نیچے جاؤ. 22 سینکڑا نیچے جاؤ. ہزار نیچے 10,000 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ. تو یہ کی بنے گا ایسا؟ کروڑ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نیچے گنتی ختم 10 ہوگی میری. کروڑ 10 کروڑ. سو 69 کروڑ آئے ہیں جناب. ارے تو نیچے یہ جاؤ بھائی. نیچے 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 لسٹ جاؤ. میں جاؤ. لسٹ میں نیچے لسٹ میں جاؤ. لسٹ میں جاؤ. اوکے لسٹ میں گئے. ہاں ہاں بس یہاں پہ دیکھو. گندی بیماریاں ہم لوگوں کو ہوتی ہیں. 1 نمبر سے دیکھو. 1 نمبر پہ کون ہے؟ 2 نمبر پہ ایک کون نمبر ہے؟ پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, دوسرے نمبر پہ انڈیا, تیسرے نمبر پہ فرانس, چوتھے نمبر پہ جرمنی, 5 نمبر پہ برازیل, پھر ساؤتھ کوریا, جاپان, ہاں اٹلی, یو مسلم کے, کنٹری کہاں ہے رشیا, بتاؤ. ٹرکی, اسپین, آسٹریلیا, ویتنام, تائیوان, اس ارجنٹینا. کا دماغ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ 1 منٹ رک جاؤ یار. اس کا دماغ چلتا ہے. بول اب رہا دماغ مسلم چلاؤ. کنٹری کی طرف ہے. ساحل ابے اب ہند. اچھا چلو ساحل ایٹم کوئی ڈیکوڈ کرو. دماغ دیکھو چلاؤ. دماغ کتنا دماغ ہے چلاؤ. میں دیکھتا ہوں. کوئی بات. اچھا یہ جو ساری کنٹریز ہیں مسلم یہ ساری کنٹری بھی ہے کنٹریز. اس میں. ٹھیک ہے. ہاں مگر ہاں یہ تم ساری. لوگ سے بہت کم ہے. ہاں بالکل بہت کم. سو ہاں کووڈ جو ہے اس نے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کو, سیکنڈ ورلڈ کنٹریز کو زیادہ مارا ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو نہیں مارا. از دیٹ یور کلیم؟ میرا کلیم یہ ہے کہ جتنا میں نان مسلم ہے, نان مسلم ہاں کنٹریز ہے, اس میں اچھا نان مسلم ہی زیادہ مرا ہے. نان مسلم کنٹری میں زیادہ مرا ہے آدمی کووڈ ہو کے. اچھا مرا کتنا ہے وہ دیکھو. مرا کتنا ہے. اچھا اس میں لیکن نان ریلیجن مسلم وائز ڈیٹا کہاں ہے؟ صحیح یار یہی تو گیم ہے یار. نان کیا مسلم کنٹری پاگل میں زیادہ انسان ہے مرا یار یہ. کیا ایک آدمی بات کرو. ایک آدمی بات کرو. سارے لوگوں نے اچھا 7,000 اس میں لوگوں نے سنا. شرم آنا چاہیے. ہنسی آ رہا ہے. ہاں 7,000 لوگوں نے سنا. کووڈ چونکہ نان مسلم کنٹریز کا ڈیٹا موجود ہے, کسی اور کنٹری کا مسلم ڈیٹا بھی موجود نہیں ہے. مسلم کا اچھا بھی ہے. سوری نیچے جا کے دیکھو. مجھے پتا سعودی میرا کا بھی کیا ہے. پتا کویت کا بھی ہے. پتا مسلم کنٹری قطر میں کا بھی ہے. زیادہ نان مسلم بڑا ہوگا نا. ہاں ہاں کم مرا ہے. نان ہاں مسلم بھی نان کم مسلم مرا زیادہ ہے. مرا ہوگا. یس ہاں ہاں تو مسلم کنٹری میں نان بھی زیادہ نان مسلم مرا ہے, مسلم کم مرا ہے. یہ کہاں ہے ڈیٹا؟ ہر ریلیجیس جگہ ہر ریلیجیس جگہ. سید اشرف ریلیجیس ایتھنیسٹی کا ڈیٹا کہاں ہے؟ اب تم کو ریلیجیس چاہیے تو پھر کنٹری چیک کر لو نا. مسلم کنٹری 52 کنٹری میں سے کون سا کنٹری بھائی جس میں ریلیجیس ہے؟ ایتھنیسٹی کا ڈیٹا کیا ہے؟ ہاں اب ریلیجیس ایتھنسٹی ڈھونڈ رہے ہو. اتنا تو سیانا اور کیا پنتی مت ڈھونڈنا ہے؟ کرو بھائی. آپ نے کلیم یہ کیا تھا ڈھونڈنا ہے تو کنٹری کہ چیک تم کرو نا. لوگوں کو بیماری آتی ہے زیادہ, مسلمانوں کو بیماری نہیں آتی. میں نے ہاں آپ تو نے وہ مسلم دکھانا ہے. کنٹری نہیں ہے نا. اب مجھے وہ بتاؤ تو کہ ریلیجیس ایتھنیسٹی کہاں ہے ان میں؟ یہ لسٹ ہی تمہارا ایتھنسٹی کا پروف ہے. ٹھیک ہے. کیا مطلب یہ لسٹ لسٹ ہے. ایتھنیسٹی؟ اب مجھے بتاؤ کہ یہ جو ٹوٹل ڈیتھس ہوئی ہیں, لیٹس سے ہم یو ایس اے کا لیتے ہیں, کتنی ہوئی ہیں؟ 1,00,000 ڈیتھ ہوئی ہے. یہ 1,00,000 ڈیتھ میں سے مسلمان کتنے ہیں, کرسچن کتنے ہیں, ایتھیسٹ کتنے ہیں, ایگنوسٹک کتنے ہیں, وہ کدھر ہے؟ اچھا اس کے بعد ایڈم سنو وہ نکالنے کے بعد یو ایس اے میں ارے رک تھوڑا. دیکھو ایک. اچھا 1 منٹ رک. ساحل پہلے وہ نکلے گا نا. پتہ ہے کیا ہوتا ہے اسے؟ کہتے ہیں ویٹڈ ایوریج. ان لوگوں کو پتا نہیں ہے نا سر, بے وقوف ہیں, جاہل ہیں, ان لوگوں نہیں کو اس پتا کے نہیں بعد ہے. اور ایک ایوریج نکالنا پڑے گا ایڈم. ویٹڈ ایوریج اس کے نکالنا بعد پڑے گا یہ نا. ہوگا کہ پرسنٹیج ویٹڈ آف ایوریج ہوگا. مسلم. ہاں ہاں پرسنٹیج وہی نا, ویٹڈ ایوریج نکالنا پڑے گا. ویٹڈ ایوریج کریں گے نا. دیکھیں پہلے تو ہوگا اس کی ویلیو کہ اس میں مسلٹے کتنے تھے, ہندو کتنے تھے, ایتھیسٹ کتنے تھے, کرسچن کتنے تھے. پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کنٹری میں کرسچن پاپولیشن کتنی ہے, اس کے کتنے پرسنٹ مرے ہیں. ایگزیکٹلی
اس کے ہندو پاپولیشن کتنی ہے, اس میں سے کتنے مرے ہیں, اس کے مسلٹا پاپولیشن کتنی ہے, اس میں سے کتنے مرے ہیں. سو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے تو آپ اس طریقے سے دیکھتے ہیں, اس طریقے سے نہیں دیکھتے جس طرح یہ دیکھ رہے. سر ان کو میتھس کے ایم کا نہیں پتا, ان فل کو دماغی صرف اپن ہے. ان کو ایم سی بی سی سے باہر نکلیں گے تو کچھ اور ان کو سمجھ آئے گی نا. یہ ایم سی بی سی میں ہی ہوتے ہیں ساحل بھائی. ہاں بھائی, بتاؤ کہ 52 مسلم کنٹری ہے, سمجھ لگی ہے 52 میری بات سمجھ لگی ہے, ہیلو میری بات سمجھ لگی ہے, سمجھ لگی ہے, مگر میں کہنا چاہتا ہوں اوکے آپ مت کچھ کہیں, اس کے بعد آپ کچھ نہ کہیں, جب یہ ڈیٹا لے کے آئیں گے نا پھر بات کیجیے گا. اب میں بتاتا ہوں کہ اس قسم کی کنٹریز میں سب سے زیادہ یو کے میں, یو ایس میں, فرانس میں اور جرمنی میں. انڈیا کا مجھے نہیں پتا, انڈیا کوئی بندہ کنفرم کرے گا تو مجھے پتا لگے گا. جو نیا ریسرچ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا ساحل وہ یہ تھا کہ کووڈ کے کیسز یو ایس میں, فرانس میں, جرمنی میں زیادہ کیوں ہوئے ہیں اور یو کے میں زیادہ کیوں ہیں. یہاں پہ ٹی بی کی جو ہے نا ویکسینیشن وہ ختم کر دی گئی ہے بہت عرصے سے. ہاں سو بہت عرصے سے چونکہ لوگوں کو ٹی بی کی ویکسینیشن نہیں لگائی گئی, اور یہ جو سائنس کا وائرس ہے, یہ والا وائرس, یہ اتنا زیادہ یہاں پہ ہے ہی نہیں, تو اس وجہ سے ٹی بی اور اس ٹائپ کی ویکسینیشن نہیں لگی ہوئی تھی. تو لوگ جن کنٹریز میں ٹی بی ابھی تک موجود ہے اور وہاں پہ ٹی بی کی ویکسینیشن لگ رہی تھی, وہاں پہ کووڈ کی کلنگ ریڈیوسڈ ہے. جن کنٹریز میں زیادہ ہے وہاں پہ ٹی بی کی ویکسینیشن نہیں ہے. یہ بھی ایک ریسرچ آئی تھی بیسیکلی. دوسری بات, اب جن کنٹریز میں انوائرمنٹ ذرا صاف ہے, بہتر ہے, اچھا ہے, وہاں پہ زیادہ ڈیتھ ہوئی ہے ان ایریاز میں رادر دین کے جو قریب ایریاز ہوں جہاں پہ گندگی اور پولوشن زیادہ ہے. کیونکہ یہ بھی ان ایک کی ریسرچ آئی تھی. امیونٹی ان کی آلریڈی اسٹرانگ تھی. جی, ان کی ان وائرس سے لڑنے کی امیونٹی اسٹرانگ تھی, اور وہ زیادہ پولوٹیڈ ایریا میں, دھواں شواں کے اندر اور یہ وہ پولوٹیڈ ایریا میں وہ ان کی وہ اسٹرینتھ بن گئی ہوئی تھی. بہرحال اشرف صاحب اگر لے کے آئے میرے پاس اس کا ڈیٹا ود ریلیجس ایتھنیسٹی تو ہم ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. دوسرا سوال دیں. یہ سڑا ہوا سپر چیٹ تو ہٹا دو. یہ نہیں ہٹے گا ساحل صاحب, اس سے بھی بڑا ہے کوئی تو وہ لگا دیں یار. اچھا تو مشکل نہیں ہے, چلو تم حرام کھاؤ, تم مجھے کو پتا مشکل نہیں. ہمارے قرآن میں ہے کہ دودھ حرام تمہارے ہے قرآن میں اور بھی تو اللہ بجلی. حرام مانگ رہا ہوتا ہے. سنو بات سنو, نہیں سنو دوسرا سنو, ٹاپک اللہ لیتے حرام ہیں. کی مانگتا ہے قرآن میں؟ کیا حرام مانگتا ہے, کیا چیز کے بارے میں بول؟ اللہ کہتا ہے کہ جب تم لڑائی کرو اور حرام کا مال ان کا لوٹو تو لوٹ مار میں سے 20% محمد اور آل محمد کا ہے. کیوں؟ ہاں وہ تو دوسرا ٹاپک ہو گیا, پھر وہ اس میں بعد وہ میں حرام جائیں کا گے. مال ہی ہے نا, لوٹے ہی تم نے, نہیں لوٹا, نہیں وہ لوٹ کے حرام, مال میں سے حرام کا مال ہے. میں ارے تمہارے وہ گھر پہ حرام اٹیک کروں, نہیں ہے, تمہارا گھر لوٹ لوں تو حرام کا مال ہوگا کہ حلال کا؟ وہ دوسرا میٹر ہے بھائی, میں سمجھائے گا, اس کو بھی حلال سمجھائے کا گا, ہوگا یا مگر حرام کا؟ پہلے سود کا بارے میں بات ہے نا. سود ارے حلال کا ہوگا یا سود حرام کا, لڑائی یہ پوچھ کرنے رہا ہوں. والا الگ. ہاں تو سود جو ہے غریب سے خون چوس کے کمایا جاتا ہے, وہ جو ہے وہ دوسرا میٹر ہے. میں پوچھ رہا آپ جو ہوں حلال کا ہوگا یا حرام کا. سود پہ بھی آتا ہوں میں, ٹینشن نہیں لینے کا. ارے جو جنگ ہوتا ہے, جو یہ حق کے راستے میں لڑائی ہوتا ہے, جو غریبوں کو تنگ کرتا ہے ان کے خلاف لڑائی کرنا, ظالموں کے کہاں خلاف لڑائی غریبوں کو کرنا. تنگ کر کے مجھے ثابت کرو کہ محمد نے رومانیہ کے اوپر اٹیک کیوں, روم کے اوپر اٹیک کیوں کیا؟ ارے بہت ہسٹری ہے, رومانیہ بہت ظلم بہت کرتا تھا ہسٹری ہے. بھائی. چل چل نکل جا, ہاں بہت. اگلے مدے پہ آ, بکواس بند کر, سیدھے مدے پہ آ. اگلی بات, یہ تو ہاں نے تو ابھی مدعا ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی ڈیٹا نہیں دیا, جب ڈیٹا دے گا تو پھر بات کریں. اگلی بات کر. ہاں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو سود انٹرسٹ بینک سے لیتا ہے سارے کنٹریز, مسلم کنٹری اسی لیے ترقی میں ہے کہ وہ سود نہیں لیتا ہے. ان کے مسلم کنٹریز کون سا میں, مسلم کنٹری سود لیتا؟ پاکستان سود نہیں لیتا؟ ارے وہ مسلم کنٹری نہیں ہے, وہ ڈیموکریٹک انڈونیشیا سود کنٹری. نہیں لیتا؟ ملیشیا سود نہیں لیتا؟ دیکھو میں چل سعودی ایسا کا کر, بات مجھے بول. ایسا کر, 52 کنٹری ہیں پوری دنیا میں, مجھے اس کے ہاں اندر ایک کنٹری دکھا دے جو سود کا کاروبار نہیں کرتا, انٹرسٹ فری بینکنگ کرتا ہے. دے ایک, ون. سعودی عرب. دکھا, دکھا کے سعودیہ عرب انٹرنیشنل اے پی آر کے بغیر چلتا ہے. دکھا دے, آج تو ثابت کر دے. میں جناب یہاں پہ بتا دوں, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل جو اس کا مین سینٹرل بینک ہے وہ بغیر سود کے کام کرتا ہے. میں ثابت کر دوں گا, ٹھیک ہے. ہے تم ثابت کیسے کرو گے کہ وہ انٹرنیشنل بینک جو ہے سود لیتا ہے, وہ تم کیسے اس ثابت کا کرو گے؟ مین بینک جو اسٹیٹ بینک ہے سعودی عربی کا, کیا نام ہے؟ الراجی ہے, الراجی. یہ دیکھو جی, میں نے سرچ کیا ہے سعودی عربیہ بینکنگ انٹرسٹ ریٹ. یہ لے جی, سعودی عربیہ کی بینکنگ میں انٹرسٹ ریٹ ہے, سعودی عربیہ ٹرم انٹرسٹ ریٹ منتھلی ایوریج SIBOR 3 months was reported as 5.9% PA in July 2023.
तूने साबित करना खोती के गुर। वो कहाँ है, दिखाओ इंटरेस्ट कहाँ लिखा है बताओ। अबे डंगर इंटरेस्ट रेट खत्म, सऊदी अरेबिया टाटा, बाय बाय। बाय बाय। झटका लगा इसको। डंगर जाके पैदा हो गया पहले, इंटरनेशनल मार्केट का ही नहीं पता तेरे को। अच्छा ठीक है, मैं इसको अच्छा, इस ठीक साबित है। को तोड़ेगा, नहीं साबित को तोड़ देंगे, ठीक है। ये साबित चल अभी इसको मैं तूने गलत बोला था साबित जो कर बोलोगे वो करेगा। दूंगा। मैं इसको अब अपनी मामा के कपड़े पहन के आ, तूने कहा जो बोलोगे करेगा, मामा के कपड़े पहन के आ, चल। हाँ तो और मैं कैमरा इसको दिखा गलत लाके। साबित करेगा अभी। गलत करेगा, साबित। सुनो, करेगा। मैं इसको गलत साबित कर देता हूँ अभी, ठीक है। हंसो मत, फिर वहां पे भी दांत उड़ जाएगा तुम्हारा। लला। लाला जी आप नबी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड, एक और चीज देखने वाली है। आपका दांत टूट जाएंगे। नहीं सर, मेरे दांत नहीं टूटेंगे, इसके टूटेंगे। ये देखिए, सऊदी अरेबिया सेंट्रल बैंक इंक्रीज की इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। Saudi Arabia Central Bank on Wednesday increased its repo rate by the 25 basis point from 5.75 and ओए, इंटरेस्ट के बेसिस पॉइंट्स का पता होता है? अबे डंगर, रुक जाओ एक कभी मिनट, बैंक- एक मिनट। अबे डंगर कभी बैंकिंग पढ़ी है? इंटरेस्ट रेट और बेसिस पॉइंट्स का पता होता है? हाँ यार, सारी क्या बात करनी है। पहले इसको ओपन करो, ठीक है। मैं शेयर किया हूँ चैट में, इसको ओपन करो पहले। तू क्यों शेयर किया? जो सामने लिखा, यूट्यूब नहीं ओपन करते हम। चल निकल जा, अब तेरी दोनों बातें खत्म हो गई है, जा दफा हो। कल किसी और को ले यूट्यूब की वीडियो देगा साला। देखें, असल मसला जो है ना, वो मैं फिर बार बार जो कहता हूँ, वो एक्सट्रीम मुस्लिम्स के साथ है। वो मुसलमान हैं जो कुरान से दूर चले गए हैं। कुरान की इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे अभी आपने खत्म नबूवत का जिक्र किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी कहते हैं, यानी इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और इसकी बेस पे कितने लोगों को इन्होंने ब्लास्फेमी करके मारा भी है। अब ये जो अकीदा है, ये कुरान में है ही नहीं। ये जितनी एक्सट्रीमिस्ट को आप देखें, ये कुरान की बेस पे नहीं चल रहे, ये कुरान से दूरी की वजह से एक्सट्रीमिज्म है। तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। और एक्सट्रीमिज्म सिर्फ इस्लाम में नहीं है, दूसरे रिलीजन्स में भी है। लेकिन इस्लाम में इस वक्त काफी हालात खराब हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कुरान से दूरी की वजह से है। नहीं, वैसे हमारे मोमिन साहब के इस्लाम में आज जो है हालात खराब है कह रहे हैं ना, तो इस्लाम में हालात अच्छे कब थे ये बताइए। खिलाफत राशिदा जमाना। नहीं, अच्छा ठीक है, अब यहाँ आप जरा रुक जाइए, इस पर फुल स्टॉप लगा लीजिए। आप खिलाफत राशिदा को अच्छा जमाना कहते हैं। हाँ जी। आप खिलाफत राशिदा को जिस तारीख की बुनियाद पर अच्छा जमाना कहते हैं, आपने कभी उस तारीख पर जो है गौर किया है कि नबी की मौत हो गई है जहर केक की वजह से? वो 1 दिन 2 दिन पता नहीं 3 दिन या कोई 2 दिन कहता है, 2 रात कहता है। जहर आलूद जिस्म जब ऊदा नीला हो गया, सड़ने लगा, अंदर से ताफुन जो है उभरने लगा, तो बिलाखिर उसी जगह गड़ा खोद कर वहीं पर मिट्टी में दबा दिया गया। और इसके तरबियत याफ्ता सहाबा, जिनको किबार सहाबा कहा जाता है, जिनको किबार सहाबा, बड़े बड़े सहाबा, जिनको जलीलुल कदर सहाबा कहा गया जी, उनमें अबू बकर भी हैं, उनमें उमर भी हैं, उसमें और सभी लोग हैं। ये लोग सकीफा बनी साइदा में एक दूसरे के दस्तो गिरेबान में हैं। इसका दामन इसका गिरेबान उसके हाथ, उसका गिरेबान इसके हाथ, आपस में धींगा मुश्ती कर रहे हैं। क्यों? किस वजह से? सिर्फ अब जो है अमीर कौन बनेगा, अब खलीफा वक्त कौन बनेगा, मोमिनों का हुक्मरान, मोमिनों का अमीर कौन बनेगा। इस बुनियाद पर नबी की तक उन्होंने परवाह नहीं की। नबी का जो है जिस्म, जहर आलूद जिस्म, वो सड़ने लग गया और उनकी इसको कोई परवाह नहीं है। 2 दिन पता नहीं 3 दिन तक जो है वो इसी चक्कर में रहे कि कौन बनना है। हर किसी का दावा यह था कि हमारा जो है अमीर बनेगा। इसमें कुरैश का ये दावा है, इसमें अंसार का ये दावा है, इसमें मुहाजिरीन का एक दावा है, आपस में दस्तो गिरेबान है और सारे के सारे नबी की तरबियत याफ्ता है, सारे के सारे। आप जब उसके बाद जिसको अबू बकर कहा गया खलीफा अव्वल, उनकी भी मौत इसी तरह से जहर में हुई। अगर आप तारीख पढ़ते हैं तो भाई उमर को कत्ल किया गया, जाहिर बात है कत्ल करने वाले मुसलमान हैं। भाई उस्मान को कत्ल किया गया, उस्मान के कातिल मुसलमान हैं। भाई अली को कत्ल किया गया, अली को कत्ल करने वाले मुसलमान हैं। हसन को कत्ल किया गया, वो भी मुसलमान हैं। जिनको हुसैन कहा गया, जो कि नवासे रसूल हैं, उन नवासे रसूल और उनके खानदान को कत्ल किया गया, कत्ल करने वाले भी मुसलमान हैं। जंग जमल हुई,
आपस में दोनों सहाबा की पार्टी है, दोनों के दोनों जलील कदर सहाबा हैं, दोनों आपस में दोनों सहाबा, दोनों की जो पार्टी में भाई उसमें जलील कदर सहाबा के साथ साथ आशरा मुबश्शरा भी हैं। दोनों आपस में एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं, दोनों सहाबा हैं, दोनों मोमिनीन हैं। उसके बाद जंग सिफ्फीन हुई, वो भी मुसलमानों की, आपस में सहाबा हैं, ताबईन हैं, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं। भाई करबला हो रहा है, गर्दनें काट रहे हैं। क्या है यार भाई? एक तरफ तो दावा है कि खैरुल कुरून करनी, भाई मेरी सदी बेहतरीन सदी है और बेहतरीन सदी में ये सारे कारनामे हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो है बेहतरीन जो है मतलब जमाना था, ये जमाना बेहतरीन है। भाई ऐसा जमाना तो मैं समझता हूं कि पूरी इस्लामी तारीख में ऐसा जमाना नहीं गुजरा कि जहां पर मुसलमान आपस में महज जाह हशमत के लिए, महज जो है अमारत और खिलाफत के लिए एक दूसरे की जो है खून के प्यासे हैं, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं। आप ये जमाने को, इस दौर को बेहतरीन जमाना कह रहे हो? बेहतरीन जमाना जी। अच्छा, अब नेक्स्ट बात ये है कि ये जो आपने जो बातें बताई है ना, इसमें से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बारे में वो तो अब काफी बातें क्या सही है क्या नहीं है इस पर मैं रिसर्च कर लेता हूँ। मुखालफिन तो बातें बनाते हैं, लेकिन जहां तक जंग और उसकी आप बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो एक पूरे निजाम को चला रहे थे। इट वाज अ सिस्टम लाइक अ कंट्री चला रहे थे यार। दुनिया की सबसे बड़ी बोंगी यही है, एक लुटेरे को निजाम चलाने वाला बताते हैं। जो खुलफा थे, जो खुलफाए राशिदीन जो हैं, वो खुलफाए राशिदीन तो सिर्फ हम नाम दिए हैं ना उनको। जाहिर बात है वो आपस में एक दूसरे की दस्तों गिरबान में थे ना सर। वो बात यह है कि अगर खलीफा बन गया है तो जाहिर बात है कुछ लोग उनके मुखालिफ भी हैं। निजाम को चलाने के लिए मुखालिफों ने उनकी गर्दनें काटी, और काटने वाले मुसलमान हैं, कटने वाले भी मुसलमान हैं, और क्या। वो आपका एंगल है ना, आप अपने एंगल से देख रहे हैं, लेकिन आप ये भी सोचें कि एक मुल्क का पूरा निजाम चलाने के लिए पूरी जो है वहां पे अगर सिविल डिसोबीडियंस है, वहां पे जो अगर कोई मसले इश्यूज हैं तो उसके लिए हुकूमत जो है वो अमल में आती है। अब जाहिर बात है हुकूमत तो कैसी भी होती है। चंगेज खान भी अपने बहुत बड़े इलाके का जो है बहुत बड़ा वो था उन्हें। आप चंगेज खान को जो है ऐसा नहीं ले सकते। चंगेज खान, हलाकू खान, जाहिर बात है वो लोग भी अपने वक्त के बड़े हुक्मरान गुजरे हैं भाई। तो क्या हो गया उससे? नहीं, मैं कह रहा हूँ एंगल वो है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप जो खुसूसियत बता रहे हैं खिलाफत राशिदा की, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हर दुनिया के बहुत सारे लोग जो हुक्मरान बने, अपने अपने वक्त में अपनी हुकूमतें चलाई हैं, उन्हीं में से खिलाफत राशिदा कहने। इसमें इसमें खाना जंगी हो रही है, मारा मारी हो रही है, जो खुलफा है उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, सब कुछ चल रहा है। इसमें स्पेशलिटी क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक एंगल देख रहे हैं, आप ये एंगल भी देखें ना कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप बता रहे हैं वो मैं उससे मैं एग्री नहीं करता कि जो आप अपनी तारीख बता रहे हैं, क्योंकि काफी लोग काफिर जो या मुखालिफिन जो हैं वो ऐसी बातें भी मशहूर करते हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं होती। लेकिन मैं आप ये एंगल देखें, ये एंगल देखें जिस तारीख से आप अपने नबी को साबित करते हैं, वरना तो आपका नबी कहीं और से साबित नहीं होता ना। आप तलीम का एंगल देखें, मुखालिफिन की तो कोई रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं मुखालिफिन का। आप एक और सिनेरियो देखें जो तलीम थी, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। उसके मुताबिक मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीजें मुसलमानों में जो तालीम उस वक्त थी, खुलफाए राशिदीन जिसको फॉलो करते थे, वो आजकल के मुसलमान उससे दूर है। तो उसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल ये कहते हैं आजकल के जितने फिरके हैं वो सारे कहते हैं कि हज़रत ईसा आसमान पे बैठे, ठीक है। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो लोग जो सहाबा थे वो बहुत ज्यादा दुखी थे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहां पे कहा कि कोई भी सहाबा में से कोई भी ये ना कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। इस पे हजरत अबू बकर गए उनके पास, हजरत उमर के पास, और सहाबा के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा, उन्होंने वो एक आयत पढ़ी। आयत ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल हैं, और जो भी रसूल हुजूर से पहले आए वो सारे गुजर चुके हैं, ठीक है। यानी उनको समझाने की कोशिश की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। ये इस आयत की आप बात कर रहे हैं। हाँ, इस आयत की मैं बात कर रहा हूँ कि रसूल हैं और हुजूर तमाम रसूल गुजर चुके हैं, और अगर उनको कत्ल कर दिया जाए या फौत हो जाए तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे। बात ये थी कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये भी एक रसूल थे और तमाम रसूल फौत हो चुके हैं। अब उन तमाम रसूल में हजरत ईसा भी शामिल थे, लेकिन इन लोगों का हाल देखें आजकल के मुसलमानों का। इतनी वाज़ेह आयत है, उसके बावजूद ये कहते हैं कि हजरत ईसा आसमान पे बैठे और फौत नहीं हुए।
तो लोग क्या कहते हैं वो बात नहीं, हम तो कुरान की बात कर रहे हैं। देखिए कुरान में जो अल्फाज आए हैं ईसा इब्न मरियम के लिए, कि वराफ़िउका इलैया के अल्फाज आए हैं, यानी अल्लाह खुद जो है कुरान में कह रहा है, इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका वराफ़िउका इलैया, यानी मैं तुझे वफात दूंगा और तुझे अपनी तरफ उठाऊंगा। ये अल्फाज कुरान में आए हैं जी। ये ईसा इब्न मरियम कुरान के मुताबिक मरफूउन इलल्लाह है, ये अल्फाज कुरान में आए हैं जी। हाँ जी, देखिए अल्लाह ताला अच्छा, आप अपनी बात को जो है आप थोड़ी देर यहाँ रुक जाइए, कुछ और लोग भी आए हैं। मोमिन खुद कंफ्यूज रहते हैं, इस्लाम को क्या डिफेंड करेंगे? मोमिन अल्लाह करे भाई। अच्छा भाई ठीक है, आप जी आप अपनी बात बताइए, क्या कह रहे थे? मैं बता रहा था कि वो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह ताला की तरफ कहाँ है? अल्लाह ताला तो हर जगह है। कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला तो हर जगह है। तो अपनी तरफ उठाने का मतलब है अल्लाह ताला की राफ़ियों को हमें दुआ भी मांगते हैं नमाज में, अल्लाह मगफिरली वर हमने वह देनी वाफ़िनी वरफानी, हम अपने लिए भी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें दफा अता फरमा। बात यह है कि अपनी तरफ अल्लाह ताला जब उठाने का मतलब यह है कि दर्जात की बुलंदी, स्पिरिचुअल अपलिफ्ट, रूहानी तौर पे। ऐसा कहाँ लिखा है उसमें? ऐसे वो कुरान की जो है इस आयत में ऐसा कहाँ लिखा है दर्जात की बुलंदी? अल्लाह तो हर जगह है ना, अल्लाह ताला तो हर जगह है। अल्लाह ताला की तरफ क्या हर जगह है? कहाँ बाथरूम में भी है अल्लाह ताला? बाथरूम में भी होता है अल्लाह ताला हर जगह। बाथरूम में भी है, बाथरूम में भी होता है। इसको आप इतने एक आदमी जो है टट्टी कर रहा है वहां भी अल्लाह ताला होता है। आप बात को खराब ना करें। अरे नहीं, यानी आपने कहा कि हर जगह है, तो फिर जाहिर बात है हर जगह की बात तो हर जगह हो जाएगी ना भाई। हाँ जी, मैं तो यही कह रहा हूँ ना। जी आपने तो भी सिर्फ बाथरूम पूछे भाई, आपने सिर्फ बाथरूम पूछे, वो तो ईसा की डिलीवरी के टाइम भी है नीचे, वो के वक्त नीचे है अल्लाह ताला। सच वाला साहब, एक बात मैंने और आपको कहनी थी कि आप जब कुरान मजीद करते हैं ना, जो आप अंडरस्टैंडिंग देते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप ये कहते हैं कि हदीस पे नहीं जाना, और फिर साथ ये कहते हैं कि कोई दुनिया की एग्जाम्पल्स पे नहीं जाना। देखें, अगर हम वो नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला तो बार बार कहता है कि इस पे गौर करो, अक्ल इस्तेमाल करो। अक्ल जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप सिर्फ लफ्जों पे बैठे रहेंगे और दुनिया की एग्जाम्पल से नहीं समझने की कोशिश करेंगे कि तो फिर आप उस आयत का मतलब सही नहीं समझ सकेंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुन लीजिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह की किताब और अल्लाह का कलाम ये इस तरह की दूसरी किताबों का मोहताज है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं मैं दूसरी किताबों के बगैर अल्लाह का कलाम समझ में नहीं आ सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं? ऑब्जर्वेशन थ्रू योर अपने भाई, ये आपके अपने अल्फाज है ना। देखें, मैं तो कुरान के अंदर से बात कर रहा हूँ। क्या कुरान किसी और किताब को इसके साथ जुड़ाने की, इसके साथ मिलाने की, समझने के लिए किसी और किताब के मोहताज होने की बात करता है कुरान? वो बात जो है उसकी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तो फिर बात कहीं और निकल जाएगी। बात ये, मैं हल्की सी बात आपको बता देता हूँ। आप सीधे सवाल का सीधा जवाब दो ना मेरे भाई। बात यह है कि अगर आप साफ दिल के साथ आएंगे तो आपको वाकई कुरान में आपको समझ आएगी। अगर आप एक ट्विस्टेड माइंड के साथ आएंगे तो आप ट्विस्टेड माइंड जो है ये क्या होता है यार? ये तो आपके अपने अल्फाज है ना यार। मैं तो कुरान पर जो है अपने नेचुरल जो आंखें हैं, मेरा नेचुरल जो दिमाग है, मैं उससे जो है उस पर गौर कर रहा हूँ, और मैंने जो है जो कुछ लिखा है कुरान में, जाहिर बात है हमारे पास कुरान एक लफ्जों की शक्ल में है, समझे ना। तो जो अल्फाज मेरे सामने है उसका एक्चुअल टेक्स्ट में उस पर गौर करता हूँ, क्योंकि कुरान ने जो है ये कहा है कि इसी मतलब इस पर गौर करो, इस पर तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, ये तामुक करो। मैं करता हूँ, और करने के बाद जो नताइज सामने मेरे सामने आते हैं मैं दुनिया के सामने पेश करता हूँ। मैंने क्या गलत किया बताइए? हाँ जी, उसमें जो अब ये जहां तक है कि कुरान मजीद की एक आयत से मल्टीपल मतलब भी निकलते हैं, अजीम से अजीम, लेकिन वो मतलब जो दूसरी आयत के खिलाफ ना हो। अब जो जिस लेवल पे है, अगर मैं जो एक आम जिसको बहुत एजुकेटेड नहीं है उसको भी चीजें समझ आएंगी और उसकी एक फहम जो है उसको पता चलेगा उसको अपने हिसाब से। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको हो सकता है और अजीम कुरान के अल्फाज के मल्टीपल मीनिंग होते हैं, आपने कहा, आपने यही कहा ना। मेरी बात सुन लो, कुरान ने वालिद का लफ्ज कई बार इस्तेमाल किया है, तो वालिद के कितने माना है बताइए? कुरान ने अल्लाह का लफ्ज कितने हजारों बार इस्तेमाल किया, अल्लाह के क्या माना है बताइए? कि ना अल्लाह ताला की जो सिफात है वो, मैं सिफात की बात ही नहीं करूं, मैं अल्लाह के लफ्ज अल्लाह की बात करूं। आपने कहा कि कुरान के अल्फाज के एक से ज्यादा माना होते हैं, लफ्ज अल्लाह के एक से ज्यादा माना लेके बताइए आप। बाज केसेस में रहमत जो है वो उसमें अल्लाह ताला, उस कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला का वर्ड यूज हुआ है। बाज केसेस में यौम आखिर के हिसाब किताब, मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ यार, अल्लाह के एक से ज्यादा कौन कौन से माना है बताइए? मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन
मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात जब हिसाब किताब करने वाले के हिसाब से अल्लाह का नाम आया तो वो हिसाब किताब करने वाला के कॉन्टेक्स्ट में उसका नाम यूज हुआ। अरे मैं लफ्ज़ अल्लाह की बात कर रहा हूँ। लफ्ज़ अल्लाह के एक से ज्यादा माना है, एक से ज्यादा माना है। मोमिन कभी भी किसी भी सवाल का सीधा सीधा जवाब दे ही नहीं सकते हैं। लफ्ज़ अल्लाह की बात कर रहा हूँ यार। हाँ, अल्लाह ताला जो है वो दुनिया का बनाने वाला आर्किटेक्ट, वो जो है हिसाब किताब करने वाला, वो लोगों पे को वो रहमान रहीम अल्लाह ताला मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ यार। आप मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब नहीं है। अल्लाह के अल्लाह का जो लफ्ज है इसके एक से ज्यादा माना है क्या, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। लफ्ज अल्लाह के एक से ज्यादा माना है। आपने कहा कि कुरान के अल्फाज के कई माना है, तो लफ्ज अल्लाह के कितने माना है बताइए। मैं रहमान के तौर पे भी अल्लाह के मानी को ले सकता हूं। मैं रहमान की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, अभी मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ। ये बात जो है ना, ये मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर आदमी अपने एजुकेशन लेवल के हिसाब से उसको समझ आ जाती है, एज लॉन्ग एज के वो एक इसका मतलब कुरान जो है एजुकेशन के हिसाब से समझ में आता है। ऐसा कहाँ लिखा है एजुकेशन के हिसाब से? तो कुरान को कहने के वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, यानी हमने तो कुरान को आसान बना दिया। वहां कोई एजुकेशन की बात ही नहीं हो रही। और ये बात कुरान बार बार रिपीट कर रहा है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। है कोई जो है इस तरह की नसीहत हासिल करने वाला? हमने तो कुरान को आसान कर डाला। अच्छा चले, मैं कुरान तो आसान है, यहाँ किसी एजुकेटेड पर्सन के लिए बल्कि स्पेशलिटी नहीं है। ओरिजिनल क्वेश्चन कुरान आसान है तो आप उसको मुश्किल क्यों बना रहे हो? भाई आपका घुमा फिरा के कहने का मकसद ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान नामुकम्मल है, कुरान गैर मुफस्सल है, कुरान जो है गैर मुबीन है, कुरान की बात समझ में नहीं आती हदीसों के बगैर। हदीसें होंगी तो कुरान समझ में आएगा, वरना हदीस के बगैर कुरान समझ में नहीं आता। आपके कहने का मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? फिर आपका कहने का मतलब क्या है भाई? मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता तो यही क्या बता रहे हैं? आपने अक्ल इस्तेमाल करनी है, आप नेचर देखें, आप नेचर के निजाम को देखें। अरे मेरे भैया, तो ये ठीक है, ये सारी बातों का आपके हदीस के भंडार से क्या लेना? बाद में पूरी करूंगा तो बात मुकम्मल होगी ना जी। आप वो चीजों को ऑब्जर्व करें, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और पुरमारफ मानी आपको समझ आएगी। नबी की अहादीस जो है कि बगैर कुरान नामुकम्मल है। कुरान जो है हदीसों के भंडार के बगैर समझ नहीं आता। वाह, क्या इल्जाम है यार कुरान पर। आपने तो कुरान पर बहुतान बांध दिया। जो अकीदा है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हदीस की किताबों के बगैर कुरान समझ में नहीं आ सकता, तो आपका ये इल्जाम है कुरान पर। हालांकि कुरान तो ये बात नहीं कहता। कुरान कह रहा है कि वो तो क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर किताब है, बिल्कुल वाज़ेह किताब है। कुरान तो ये कह रहा है। अकीदा जो है ना वो कुरान मजीद में, अकीदा जो है वो कुरान मजीद में मौजूद है और वाज़ेह आयात उसके लिए कुरान मजीद में मौजूद होनी चाहिए। अब अकीदे क्यों होने चाहिए, इसका मतलब अगर नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बातें होने चाहिए वो कुरान में नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करने का है जिक्र। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि कैसे करनी है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने बात इनकम्प्लीट की, अल्लाह ने कंप्लीट बात नहीं की। मैं आपकी बात समझाता हूँ जी। किसी भी सब्जेक्ट पे आप सबसे पहले एक फॉर एग्जांपल एक बेस्ट पिक्चर बनाए कि व्हाट शुड बी द, जो क्या चीज जो है, क्या कॉन्सेप्ट कुड बी रियली अप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसके बाद आप कुरान मजीद को उस पर पढ़ें आप, और या दूसरी बुक्स को भी, दूसरी बुक्स हैं, हो सकती हैं दूसरी मज़ाहिब की बुक्स हैं, उनको पढ़ें, या फिर कुछ इवन जो इंसानों की बनाई हुई किताबें उनको पढ़ें। आपको जो आप बेस्ट पिक्चर बना रहे हैं उस पे आपको कुरान मजीद सेटिस्फाई करेगा, या उससे भी बेहतर आपको एक एंगल देगा एक सर्टेन सब्जेक्ट के बारे में। दैट्स द वे टू लुक एट द थिंग्स। यू हैव टू जो आपको नॉलेज है, जो आपको अंडरस्टैंडिंग है, जो आपके इर्द गिर्द दुनिया है, उसको देख के, उसको अक्ल इस्तेमाल करके आप एक बेस्ट पिक्चर बनाएं और देखें कि क्या कुरान वो बात कह रहा है या उससे भी बेहतर बात कह रहा है, या कोई और बुक्स को भी आप पढ़ें। किसी भी चीज आप हदीस की बात करो यार, कुरान की बात करो, लेकिन आप हदीस की अपनी बात जो है बताइए ना। कुरान का हदीस से क्या लेना देना है भाई? क्या लेना देना? हदीस कुरान का हदीस से क्या ताल्लुक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन है कुरान का हदीस से, एक्सप्लेनेशन है क्या? कुरान ने कहा है कि जो है हदीस मेरी एक्सप्लेनेशन है। जो हमें आयात की देखें, एक अंडरस्टैंडिंग हमें कुरान मजीद से भी आती है, लेकिन मजीद उसको जो है एक्सप्लेन, इसका मतलब है कि मजीद की जरूरत है। अरे यार फालतू की जो है बहुत ज्यादा जो है बातें हो जा रही है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस एंगल से चीजों को समझते हैं, क्योंकि मैंने एंगल क्या मतलब कुरान में समझने के लिए है क्या? अभी फुजूल बातें मिली हुई है, कोई बुक नहीं समझी जाती जो आप तरीका अपना रहे हैं कुरान में। अरे मेरे भाई, कुरान में समझने के लिए है क्या यार? फुजूल बातों का जो है पिटारा है वो। आप दूसरी बुक्स को जिस तरह समझ बातें जो है जरूरत से लेकर जो है, और क्या तो उसको समझना क्या है, क्या करना है, तो मतलब समझ करते हैं। दुनिया भर की बेकार की बातें इस किताब में लिखी हैं और ये लोग अल्लाह की किताब इसे मानते हैं। कुरान ने इंसान को दिया क्या है, ये बताओ जरा, ये बताओ क्या दिया है?
खुदा अल्लाह देखें आप जो हर अच्छा, वक्त इसका सवाल मतलब में कुरान बात के कर रहे बगैर हैं, खुदा नहीं मिलता आपको? आप ये कहना चाहिए अगर जिसके पास कुरान नहीं है उसके पास खुदा नहीं है, कंफ्यूजन है, ये कहना चाह रहे हैं? कंफ्यूजन है। अच्छा, देखें कंफ्यूजन है। हाँ हाँ जी अच्छा, बिल्कुल है। इसका मतलब यह है कि देखें- सुनिए यार, जो है ये कुरान जिस जगह पर जब आया उससे पहले किसी के पास खुदा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना? नहीं पूरी था। दुनिया जो है खुदा को नहीं जानती थी, और आज भी जहां जहां ये कुरान नहीं गया वहां पर खुदा का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसका मतलब सारे लोग गलत हैं। जहां कुरान गया वहां पर जो है लोगों को रोशनी मिली, और हम नहीं, देख रहे हैं बेशक कि था दुनिया तो- जो है, जो दुनिया में जिस जगह कुरान गया वहां सिवाय अंधेरे के और कुछ भी नहीं है, और जिस जगह पर कुरान नहीं पहुंचा वहां रोशनियां भी हैं, वहां की कौमें मुहकम भी है, मुस्तहकम भी है, सुरखरू भी है, कामयाब भी है। हम तो उल्टा देखते हैं। हाँ जी देखें जिस जगह कुरान गया वहां पर जो है मारा मारी, वहां पर खून खराबा, वहां पर जो है इस तरह की जो है मतलब आपस में एक तरह का तनाव जरूर है। आप खुद भी कहते हैं कि आप ट्रेन को देखते हैं, आप चीजों को देखते हैं कि यार ये आप सोचते हैं कि यार कोई बनाने वाला है। ये कॉन्सेप्ट तो इंसान के दिमाग में है। ये कुरान जो है वो नेचर के ऐन मुताबिक है। आपने इस बात को समझना है कि कौन सी तालीम आपकी अच्छा, नेचर किसने बनाया? अच्छा सुनिए सुनो जरा, आपका ये क्लेम है कि इस जमीन को जो है आपके अल्लाह ने बनाया, आप ये कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए जो एक तो इसका प्रोसेस कोई सबूत है आपके पास? इसका कोई सबूत है कि जो है आपके अल्लाह ही ने बनाया? कोई सबूत है? जो आप अंबिया को जो पेशन गोइयां हुई थी, ठीक है, क्या पेशन गोइयां हुई यार? आप कौन सी मैं पेशन गोई? बता। मैं वो YouTube का लिंक आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। यू कैन अरे मेरे भाई, यूट्यूब ने आप बताइए कि कुरान में कौन सी पेशन गोई है? कौन सी? हाँ नहीं वो कुरान मजीद में भी हाँ, पेशन गोइयां है। कौन सी है कुरान में? कौन सी पेशन गोई है जरा बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। एक तो सबसे बड़ी जो है वो कुरान में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की पेशन गोई है क्या? सूरत जुमा वाली है। अरे सूरत अच्छा, जुमा बताइए कौन सी पेशन गोई है कुरान में यार, बताइए कौन सी? मैं बताने लगा हूँ। वैसे तो काफी सारी हैं, और अच्छा। असल पेशन गोइयां फिर अंबिया ने उसको और क्लैरिफाई किया है। अरे यार कौन सी पेशन गोई है यार? इतनी सारी, बहुत सारी, उसमें से एक 10-20 बता दो यार। बहुत सारी में से एक यानी 10-12 जो है पेशन गोइयां बता दो। चलो नंबर 1, अब्दुल हमीद साहब जरा आप जो है पेपर लेके बैठ जाइए, यहाँ पर कुरान की पेशन गोई बताई जा रही है जी। हाँ जी ये बिल्कुल तैयार रहिए जी। सबसे पहले बताइए कुरान की सबसे पहली पेशन गोई क्या है? सूरत जुमा की आप क्या है? सूरत जुमा की आप पहली 3 आयत पढ़ लें, ठीक है। क्या है लिखा है उसमें? क्या है उसमें तो आपकी कोई भी आइडियोलॉजी कैसे आती है, कैसे डेवलप होती है, कैसे टाइम लगता है, फिर कैसे वो आगे से डेवलप होती है, और वो कैसे वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से के लिए वो एक मेडिकल था, और ऐसा ही दोबारा होना। कौन है हुजूर? कौन है वहां पर? हुजूर क्या है भाई वहां पे? हजूर तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद कहाँ है वहां पर? वहां मोहम्मद कहाँ है? आपने कहा कि मुझे नहीं मालूम या मुझे नहीं लगता कि और रिलीजन, बाकी रिलीजन अच्छा हो सकता है। क्या आपने बाकी सारे रिलीजन पढ़े? हाँ पढ़ा हूँ मैंने। आपको रेफरेंस दूं? जैसे आप रेफरेंस दे रहे हो। रुको। क्या आपने पूरी वेद, गीता वीता सब पढ़ी आपने? देखिए अब मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं दूसरों के धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मेरे को पता है बहुत चीज गलत है। अच्छा ठीक है चलो थोड़े आदिल, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि तुमने बाकी रिलीजन सब पढ़ लिया है और उसमें कुछ गलत बातें, ठीक है। कोई भी रिलीजन मानो, कोई भी रिलीजन मत मानो, कोई भी रिलीजन। जरूरत क्या है रिलीजन की? क्यों नहीं है? आपको क्या, आपको जहन्नुम जाना है, जन्नत नहीं जाना? ये जहन्नुम जाना है, ये जहन्नुम तुमने देखा है आदिल? तुम पढ़े लिखे हो ना आदिल? अब हाँ अच्छा, तो कौन ये सब सूरज चांद ये? आदिल पहले ये बोलो कि तुमने जहन्नुम देखा है? नहीं पहले कितना पढ़े लिखे हो? नहीं मैंने नहीं देखा जहन्नुम, मैंने नहीं देखा, पर मैं विश्वास करता हूँ कि है। आदिल रुको, चांद दिखता है ना? दिखता है जरूर। सूरज दिखता है। तो हमारा काम है सिर्फ इतना मानना कि चांद है, सूरज है। जहन्नुम दिखता है? नहीं। जन्नत दिखती है? नहीं। तो इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना दिखती है ना साबित की जा सकती है। तो इसको चांद और सूरज से कंपेयर करने का मतलब ही सेंस ही नहीं बनता है। आप जब ना जहन्नम साबित कर सकते, ना जन्नत साबित कर सकते, और वो बता रहा है जो कि गंदी किताब है जिसमें गंदगी लिखी हुई है। सुनो साहिल भाई, आप मानते हो कि आपसे भी मतलब बहुत होशियार रहेंगे, ठीक है, बहुत से लोग होंगे, है कि नहीं?
नहीं जरूर देखो नहीं होएगे, जरूर होएगे, नहीं। आपसे भी बहुत। point और क्या है? और Point क्या है? और दिल हाँ point हाँ क्या है? हाँ, वही पॉइंट क्या है। और फॉरेन में भी बहुत सारे पढ़े लिखे रहते, उन लोग मतलब ऐसे ही नहीं कि कोई भी रिलीजन उठा के हाँ चलो भाई मैं इस्लाम ले रहा हूँ, इस्लाम मेरे को अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं। उन लोग सब पढ़ देख कर ही उन लोग इस्लाम कबूल करते हैं, ऐसा फॉरेन नहीं में कि लोग हवे में। इस्लाम छोड़ रहे हैं, स- 28% लोग हर साल इस्लाम छोड़ते हैं। और तुम ये नहीं देखे कि कितने साल कबूल कर रहे, कितने जन बिल्कुल नहीं कबूल कर कर रहे, रहे। पूरा नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ते, कर रहे। हाँ पूरा पढ़ते नहीं है। आदिल 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 जितने आदिल जो अपोस्टेसी रेट है ना नए कबूल करने वालों में, वो 50% है। जो 50% लोग इस्लाम कबूल करते हैं वो विद इन द फर्स्ट तो ईयर। ऐसे 50% ऐसे सुनो बढ़। यार, तुम एक तो आदिल बीच में बक बक करते हो ना, वो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप तुम्हारी। भी करते हो ओके, जो नए इस्लाम को कबूल करते हैं उनका अपोस्टेसी रेट 50% है पहले साल का, और दूसरे साल में 25% मजीद इस्लाम छोड़ देते हैं। सो बेसिकली जितने लोग इस्लाम कबूल करते हैं वो विद इन द फर्स्ट 2 years, उसमें से 60 समथिंग परसेंट, क्योंकि पहले साल में 50% और जो रिमेनिंग है उसमें से ना तो 25%, तो 60 to 63% लोग ऑलरेडी इस्लाम छोड़ देते हैं। जो इस्लाम में रहते हैं वो सिर्फ इस वजह से रहते हैं क्योंकि उन्होंने शादी की होती है किसी मुस्लिमा से, या वो मुस्लिमा बन के शादी करती है, इस वजह से वो इस्लाम में रहते हैं। वरना जो वैसे इस्लाम कबूल करते हैं वो इस्लाम छोड़ देते हैं विद इन द फर्स्ट 2 years, बिकॉज इस्लाम कबूल करने के लिए आपको पूरा इस्लाम पढ़ाना नहीं पड़ता, कलमा पढ़वाओ इस्लाम कबूल कराओ। जब वो इस्लाम को समझते हैं इस्लाम छोड़ देते हैं। आपको फॉरेन के अंब का नहीं पता, इंडिया में रहते हो, छोटे और से बच्चे हो, वहां तक बोलो जी साहिल भाई। और एडम, मैं इनको एक एग्जांपल देता हूं जो कि मैंने इसको सैयद अली को या पता नहीं किसी को दिया था, और वो इनको अगर समझ में आ जाए तो ये समझदार है, वरना फिर इनसे आगे बात करके मतलब नहीं है। ठीक है आदिल, एक बात बताओ, मैं एक मिसाल देता हूं तुमको जो मैंने पहले भी दी थी। ठीक है, एक पानी पूरी वाला है, ठीक है, पानी पूरी वाला जो उसका ठेला है उसमें बहुत खूबसूरत तरीके से उसने प्रेजेंटेशन रखी है। ठीक है, जी हाँ पूरी, और वो उसका मसाले वाला पानी और वो सेव वो सब रखी है। ठीक है, अब वो पानी पूरी वाला जो है जब अकेले में होता है या कोई नहीं होता है तो वो अपने हाथ से पिछवाड़ी को खुजाता है। ठीक है, ठीक है और उसके बाद कोई कस्टमर जब आता है तो उसी हाथ से वो पानी पूरी बना के देता है। ये मैं ऐसा नहीं है कि कोई एक नया एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये सोशल मीडिया पे ऐसे कई सारे पानीपुरी वाले भैयाओं के या पानीपुरी वाले जो होते हैं उनके वीडियोस काफी वायरल है। एक तो चीज ये, दूसरी चीज वो जो मसाले वाला पानी बनाता है वो असल में शौचालय से जाके लेके आता है, वो भर के ब्लू कलर का जो वो ये होता है ना टोप पानी का, वो वहां से भर के लेके आता है। लेकिन आपको नहीं पता है या खाने वाले को नहीं पता है। खाने वाले ने क्या देखा, ऊपर ऊपर से पानी पूरी शेप सब एकदम मस्त लग रही है, 100-200 की तादाद में लोग खा रहे हैं। आदिल ने देख लिया कि ये जो शख्स है ये तो पिछवाड़ी खुजा रहा है और वही हाथ से पानी पूरी बना रहा है और पानी ला रहा है शौचालय से। आदिल ये बताओ, 100 लोगों को देख के जो 100 लोग आके खा रहे हैं, क्या तुम उसके पास से पानी पूरी खाओगे? नहीं, मैं उसके पास से नहीं खाऊंगा, मैं दूसरे के पास से खाऊंगा। नहीं, लेकिन 100-200 लोग रोज आके खा रहे हैं। तुम मेरे को क्या करना है साहिबा उससे? एग्जैक्टली कौन इस्लाम में आ रहा है नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि तुमने देखा कि इसमें गंदगी है और साहिल भाई सुनो मेरी बात कंप्लीट होने दो। हाँ, तुमने देखा इसमें गंदगी है, तुमने यहाँ पे लाइव कबूल भी किया कि ये गंदी बातें है, ये अच्छी चीज नहीं है, तुमने देख लिया। लोग आ रहे नहीं आ रहे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुमने चूंकि देख लिया, तुमको इसमें नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से तुम पानी पूरी नहीं खाओगे उस शख्स के हाथ की। बोलो अभी। देखो, अगर मैं नहीं खाऊंगा ठीक है, सही बात है, पर मैं ऐसा उसको समझा भी सुनो ना साहिल भाई सुनो ना, मैं उसको पर ऐसा अगर मैंने देख लिया, ऐसा मैंने देख लिया उसको ये करते हुए, तो मैं उसको समझा भी सकता हूँ कि नहीं? एग्जैक्टली चलो ये भी बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। वो पानी पूरी वाला, उसको तुम समझाओगे कि भाई ठीक है ये तू गलत कर रहा है,
और ये इस तरीके से मत कर, लेकिन जो इस्लाम है उसमें तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम इस्लाम में चेंजेस कर सको। तो वो जो पॉसिबिलिटी है पानी पूरी वाले को समझाने की, वो इधर इस्लाम में नहीं है, इस वजह से तुम चेंजेस नहीं कर सकते हो, तो तुमको इसको छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा कुछ इसमें काउंटर आर्गुमेंट दे सकते हो तो दो, लेकिन तुम समझ चुके हो। ठीक अब है, अगर तुम बहस करोगे तो मतलब वो तुम्हारी जिद है। जी ठीक है, देखो आपने जो बोला, ठीक है, रेफरेंस दिया, जो भी दिया, मैं देखूंगा, मैंने आपकी बात पे यकीन किया, हाँ ठीक है वैसा है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं है, पर मेरे को इतना मालूमात नहीं था उसके बारे में, मैं एक बार देखूंगा, ठीक है, ठीक है ना, अब तो मैं भी अभी तो तुमको कुरान खोल के बताया ना। हाँ ठीक है, पर तो मैं देखूंगा, पर ठीक है, पर इतना ही साहिल भाई, बस मैं इतना ही बोलूंगा कि इस्लाम से अच्छा कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। फिर भाई वही देगी अभी देखो साहिल भाई मैं तुम बताओ, साहिल भाई आपको मना कर रहा है पानी पूरी नहीं खाऊंगा, लेकिन ये फिर जाके नहीं, एक मिनट अमित, एक मिनट भाई, अब मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता हूँ तेरे से। तू वो गान खुजाई हुई पानी पूरी जाके खा ले, क्योंकि तेरे लिए वो अच्छी है। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट टाइम मत जुड़ना अगर इसी तरीके से तेरा दिमाग अपंग रहा तो। इतना सब करने के बाद ये तो तुम्हारी जिद हो गई ना यार। इतना सब सुनने के बाद, गलत बोलने के बाद बोलता है सबसे अच्छा रिलीजन है इस्लाम। मैं इसलिए चुप था क्योंकि मैंने बोलना था तो फिर गेम खराब हो नहीं थी। नहीं, ये दिमागी अपंग है ना ये। हमने हमारा फर्ज अदा